One day they come up a flood in 1937. There came a flood. और 1937 में बाढ़ आई थी। 1937 में बाढ़ आई थी। And I was on patrol at that time, and I was trying my best to bring the people out of the flood houses, tearing down. और इन दिनों में गश्त पर था और भरसक कोशिश कर रहा था कि बेघर हुए मकानों के लोगों को बाढ़ से बचा लाऊं। My own wife took sick, and she was real sick with pneumonia. तभी मेरी अपनी पत्नी सख्त बीमार पड़ गई, उसे निमोनिया हो गया था। And they took her out the regular hospital so full we couldn't put her in there. और उसे नगर से बाहर ले जाना पड़ा था। वे लोग उसे बाहर ले गए क्योंकि वहाँ अस्पताल पूरा भर गया था और वहाँ नहीं रखा जा सकता था। So we take her out to the government where they had a room out there. और हम उसे बाहर एक और सरकारी अस्पताल में ले गए जहाँ कमरा खाली था। So then they called me back out. उसके बाद मुझे बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में वापस बुला लिया गया। And I always lived on the river and quite a boatman. मैं जीवन भर नदी के तट पर ही रहा था और अच्छा नाविक था। So I was trying to get the people, rescue them from the flood. अतः पूरी कोशिश कर रहा था कि लोगों को बाढ़ से बचा सकूं। And then they called me, said there's a house over on Chestnut Street's about ready to go in. और उन लोगों ने मुझे बताया कि चेस्टनट स्ट्रीट पर एक मकान बह जाने की दशा में है। There's a mother and a bunch of children in there. और एक महिला और उसके कुछ बच्चे उसमें फंसे हैं। Said if you think your motor can get into them. अगर तुम समझते हो कि तुम्हारी मोटर बोट वहां तक जा सकती है तो तुम उन्हें बचा लाओ। I said, well, I'll do all I can. मैंने कहा मैं जो कर सकता हूँ करूँगा। And I shooting those waves, the dike had broke up there, and oh my, they were just washing the city out. और मैं उन तूफानी धाराओं में चल दिया। वहाँ बांध टूट गया था और बांध का जल शहर को बाहर ले जाना चाहता था। And I would give it all the juice that I could, and finally down across the alleys and through the places. और मैं अपनी सारी ताकत लगाकर और सारी कोशिशें करके जो मैं कर सकता था अंत में उस स्थान के पास पहुंच गया। I got there close to where the old levee was, the water pouring through it. वह किला सा था और पानी उसमें से होकर बह रहा था। And I heard someone scream, and I seen a mother stand out on the porch. और मैंने एक महिला और उसके बच्चों की चीख पुकार सुनी जो वहीं पोर्च में पड़ी थी। There's some big rollers going through like that. उस भवन में बड़े बड़े गोल खंबे थे। Well, I went on up this way as far as I could and hit the stream and come back and got on that side. मैं एक ओर से होता हुआ काफी दूर पहुंचा और फिर वहां से तेजी के साथ जलधारा में घुसा और उसे चीरकर उस पार किसी न किसी तरह पहुंच गया। I've got my boat stopped just in time to tie it around the pillar of the post of the door, post or porch post. और मैंने अपनी मोटर बोट ठीक उस जगह रोकी जहां उस भवन के द्वार या पोर्च का बड़ा खंबा था ताकि उसके साथ अपनी नौका को बांध सकूं। And I run in and grabbed the mother and got her in there, 2 or 3 of the children. मैंने दौड़कर शीघ्रता से उस माँ और उसके 2-3 बच्चों को नौका में चढ़ाया। And I undone my boat and got her back. और अपनी मोटर बोट खोलकर वापस लौट पड़ा। Come out way down below and got her over to the shore, about 1.5 miles across the city. So I got her to the shore. मैं उन्हें लेकर शहर से 1.5 मील दूर नदी तट पर पहुंचा। And then when I got over there, she had fainted. और जब हम तट पर पहुंचे तो बेहोश हो गई। She began, she was screaming, "My baby, my baby!" और फिर चिल्लाने लगी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। Well, I thought that she meant she left the baby in the house. उसकी पुकार सुनकर मुझे लगा कि उसका बच्चा घर में ही रह गया है। Ooh, I took back again while they was trying to take care of her. उधर लोग उस महिला को संभालने लगे और मैं वापस उसके घर की ओर चल पड़ा। And I come to find out she was wanting to know where her baby was there. बाद में मुझे पता चला कि वो अपने बच्चे के बारे में पूछ रही थी। There was a little fellow about 3 years old, and I thought she meant a little nursing baby or something. वहाँ उसके साथ उसका 3 वर्ष का बच्चा तो बचा लिया गया था, मगर उसके कहने के ढंग से मैंने समझा कि शायद कोई और दूध पीता बच्चा पीछे छूट गया है। And so I took back and got over there. अतः मैं फिर से उसी जगह पहुंचा। And when I got that boat and got on the inside and couldn't find old baby, and the porch give away and the house went in. और जब मैं घर के भीतर देखकर बाहर आया, कोई बच्चा नहीं था, तभी वो घर ढह गया। And I run real quick and grabbed the piece there that was floating my boat, got into the boat and pulled that and loosened it up. मैं बड़ी तेज से दौड़कर बाहर भागा और उस खंबे के टुकड़े को पकड़ लिया
जिससे बंधी मेरी नौका जल में बहने लगी थी। मैं बोट में चढ़ गया और उसकी रस्सी खोल दी जो उस खंबे से बंधी थी। It done got me out into the current of the main river then. और तब पता चला कि तूफानी जल की मुख्य धारा में मेरी नौका आके फंस गई थी। It was about 11:30 at night, and it's sleeting and snowing. उस समय रात के 11:30 बजे थे और बर्फ सहित वर्षा बहुत तेजी से बरस रही थी। And I grabbed a hold of the starter string and I tried to pull the boat and it wouldn't start. मैंने बोट को चालू करने की डोरी को पकड़कर खींचा मगर वो चालू नहीं हुई। And I tried and it wouldn't start. And I tried again. मैंने फिर खींचा और फिर भी बोट का इंजन चालू नहीं हुआ। Getting farther in that current, the falls just below me. जल में दूर तक नौका बह चली गई और सामने ही अब जलप्रपात था जहाँ से जल बहुत नीचे गिर रहा था। And I was trying real hard and I thought, oh my, here's my end. This is it. मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि बोट का इंजन चालू हो सके। मैंने सोचा ये मेरा अंत आ पहुंचा है, या खुदा बस यही अंत है। And I'd try real hard and I said, Lord, please don't let me die a death like this. I'd pull and I'd pull. मैंने कहा प्रभु मुझे इस प्रकार की मृत्यु से मत मरने दीजिए, और मैं वाकई पूरी कोशिश करके इंजन की डोरी खींचता रहा मगर वो चालू नहीं हुआ। And he'd come back to me, what about that bunch of trash that you wouldn't go to? और तभी मेरे मन में विचार कौंधा, मानो कोई कह रहा हो कि उस कूड़ा करकट वाले झुंड के बारे में क्या ख्याल है जिनके मध्य तूने जाना नहीं चाहा। I put my hand back on the boat and I said, God be merciful to me. मैंने फिर से अपना हाथ डोरी पर रखा और कहा, परमेश्वर मुझ पर करुणा कर। Don't let me leave my wife and baby like this. And them out there sick, please. मुझे इस तरह से अपनी पत्नी और बच्चे से जुदा मत कर जो कि वहां उधर बीमार पड़े हैं। And I just kept pulling like that and it wouldn't start. और मैं डोरी खींचता रहा, इंजन चालू नहीं हुआ चाहता था। And I could feel the roaring down there because just a few minutes and oh my, that would be it. और या प्रभु मैं नीचे सामने पानी का गर्जन सुन रहा था और कुछ क्षणों में ही सभी कुछ खत्म होने वाला था। And I said, Lord, if you'll forgive me, I promise you I'll do anything. और मैंने कहा प्रभु यदि आप मुझे क्षमा कर दें तो मैं वादा करता हूँ कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। And kneeling in that boat there and the sleet hitting me in the face. मैं उस बोट में ही घुटनों के बल प्रार्थना करने लगा और बर्फीली वर्षा की बौछारें मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। I said, I'll do anything that you want me to do. मैंने कहा प्रभु आप जो भी चाहेंगे मैं वही करूंगा। And I pulled again and it started. और मैंने फिर से इंजन की डोरी को खींचा और बोट चालू हो गई। And I turned all the gas on it I could and finally it got into the shore. जितना भी ईंधन था वो मैंने पूरा खोल दिया और अंत में किनारे पर पहुंच गया। I went back to find the truck, patrol truck. और मैं उस गश्ती सरकारी ट्रक को खोजने लगा। And I thought some of them said, say, the government just washed away. वहाँ कुछ लोगों ने बताया कि सरकारी कैंप अभी कुछ समय पहले बाढ़ की चपेट में आ गया था। My wife and baby in there. Both babies. मेरी पत्नी और दोनों बच्चे उसी में थे। And I took out for the government as hard as I could and water was standing about 15 feet deep all through it. उस समय शहर में चारों ओर लगभग 15 फीट गहरा पानी खड़ा था और मैं अपनी शक्ति भर उस सरकारी कैंप को खोजने लगा। And there was a major there. वहाँ पर एक मेजर थे। And I said, Major, what happened to the hospital? मैंने उनसे पूछा, मेजर उस सरकारी कैंप अस्पताल का क्या हुआ? I said, now don't be worried. Do you have anyone in there? उन्होंने पूछा, चिंता मत करो, क्या तुम्हारा कोई उसमें था? I said, yes, a sick wife and 2 babies. मैंने कहा, हाँ, बीमार पत्नी और 2 बच्चे थे। He said they all got out, so they're in a freight car and they've headed towards Charleston. उन्होंने बताया कि वो सब बाहर जा चुके हैं, वे एक मालवाहक गाड़ी में चार्ल्स टाउन की ओर गए हैं। I got my boat and got my car, my boat in the back of it. मैं दौड़ा और अपनी कार ली और अपनी बोट उसमें रख ली और चल पड़ा। Run out there and then the creeks had come down about 2.5 or 3 miles wide. थोड़ा चला तो पाया कि पानी के बहाव से लगभग 2-2.5 मील चौड़ाई में जमीन कट गई थी। All night long I tried to. Some of them said the freight car washed off the tracks out there on the trestle. पूरी रात मैं पार जाने की कोशिश करता रहा। कुछ लोगों ने बताया कि वो मालवाहक गाड़ी लकड़ी के बने ढांचे से फिसल कर बह गई थी। Well, find myself marooned out on a little island, sat there 3 days. अंत में मैं एक पानी से घिरे टीले या टापू पर पहुंचा और 3 दिन तक वहीं मुझे रुकना पड़ा।
I had plenty of time to think about whether that was trash or not. मेरे पास ये सोचने के लिए काफी समय था कि वे लोग कूड़ा करकट थे या नहीं। Just beaten, where's my wife? मैं सोचता रहा कि मेरी पत्नी कहाँ होगी। Finally, when I found her, and a few days after I got out and got across, कुछ दिनों के बाद जब मैं उस जगह से बाहर आया और उस पार पहुंचा तो मेरी पत्नी का पता चला। she was way up to Columbus, Indiana, in the Baptist auditorium where they'd made a hospital-like sick rooms on little government cots. वे कोलंबस इंडियाना के बैप्टिस्ट ऑडिटोरियम में थी, जिसे उन्होंने सरकारी अस्पताल की तरह बना लिया था। I ran to her as hard as I could, trying to find where she was, screaming, "Hope, hope, hope!" मैं वहां तेजी से पहुंचा और उसे उन कमरों में ढूंढने लगा। मैं होप 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 कहकर पुकारने लगा। And I looked, and there she was laying on a cot, and TB had set in. और मैंने देखा कि वहां एक चारपाई पर वो लेटी थी और उसे टीबी हो चुकी थी। She raised her little bony hand and she said, "Billy." उसने अपना हड्डियों का ढांचा मात्र हाथ उठाकर कहा, बिली। I run to her and I said, "Hope, honey." मैं दौड़कर उसके पास गया और पुकारा, प्रिय हो। She said, "I look awful, don't I?" उसने पूछा, मेरी हालत बहुत बदतर हो चुकी है ना? I said, "No, honey, you look all right." मैंने कहा, नहीं प्रिय, तुम ठीक दिखाई दे रही हो। For about 6 months we worked with everything that was in us to try to save her life, but she kept getting lower, lower. लगभग 6 महीने तक हमने उसे बचाने के लिए वह सब कुछ किया जो हम कर सकते थे, लेकिन उसकी दशा दिन प्रतिदिन गिरती ही गई। One day I was on patrol and I had my radio turned on. एक दिन मैं अपनी गश्ती ड्यूटी पर था और गाड़ी का वायरलेस रेडियो सेट खुला था। I thought I heard him say, make a call on the radio, said, for William Branham, wanted the hospital at once, wife dying. और मुझे रेडियो पर उनका संदेश सुनाई दिया, विलियम ब्रैनम के लिए सूचना, तुरंत अस्पताल पहुंचो, पत्नी मरने वाली है। I rushed back to the hospital as quick as I could, turned on the red light and the siren and took off. मैंने फौरन गाड़ी की खतरे वाली लाल बत्ती जलाई, सायरन चालू किया और अस्पताल की ओर जितनी तेजी से चल सकता था चल दिया। And then I got up at the hospital and I stopped running. अस्पताल पहुंचते ही मैं दौड़ता हुआ अंदर पहुंचा। Coming down through the hospital, I seen a little buddy of mine. We fished together, we run together as boys. Sam Adair. अस्पताल में घुसते ही मेरा एक साथी सैम अडेयर मिला, जिसके साथ मैं शिकार खेलता था और वो मेरा बचपन का साथी था। Dr. Sam Adair, he's the one that was the vision come not long ago and told him about the clinic. डॉक्टर सैम अडेयर वही व्यक्ति थे जिनके बारे में दर्शन दिखाई दिया था और अधिक दिन नहीं हुए जब उनके क्लिनिक के बारे में कहा गया था। He said if anybody doubted the vision, just call him collect if you want to know about whether it was right or not. और उन्होंने कहा था कि अगर किसी को दर्शन के संबंध में संदेह हो तो उन्हें बुलाकर विवरण प्राप्त कर स्वयं देख ले कि वो सच है या नहीं। And so then here he come out like that and he had his hat in his hand. और वही डॉक्टर अडेयर इस समय अपना हैट हाथ में लिए इस प्रकार से मिले। He looked at me and he just started crying. उन्होंने मेरी ओर देखा और फिर वो रोने लगे। And I run up to him, throw my arms around him. मैं उनकी ओर दौड़ा और उनसे लिपट गया। He put his arms around me. He said, "Billy, she's going." और उन्होंने अपनी बाहों में मुझे लेते हुए कहा, बिली, वो जा रही है। He said, "I'm sorry. I've done all I could do. I've had specialists and everything." उन्होंने कहा, मुझे दुख है, मैंने सब कुछ किया है जो मैं कर सकता था, मैंने विशेषज्ञों आदि को भी दिखाया था। I said, "Sam, surely she's not going." मैंने कहा, शाम, कहो वास्तव में वो हमसे जुदा होकर नहीं जा रही है? I said, "Yeah, she's going." उन्होंने कहा, हाँ, वो जा रही है। And he said, "Don't go in there, Bill." और उन्होंने कहा, बिल, तुम अंदर मत जाओ। And I said, "I've got to go in, Sam." मैंने कहा, शाम, मुझे जाना ही है अंदर। He said, "Don't do it. Don't. Please don't." उन्होंने कहा, ऐसा मत करो, मत करो, कृपया मत करो। I said, "Let me go in." मैंने कहा, मुझे अंदर जाने दो। He said, "I'll go with you." मैं कहा, मैं भी तुम्हारे साथ भीतर चलूंगा। I said, "No, you stay out here. I want to stay with her in her last minutes." मैंने कहा, नहीं, तुम बाहर ठहरो, उसके अंतिम क्षणों में मैं उसके पास रहना चाहता हूँ। He said, "She's unconscious." उन्होंने कहा, वो बेहोश है। I walked in the room. मैं कमरे में दाखिल हुआ And the nurse was sitting there and she was crying because she and Hope was schoolmates together. नर्स वहाँ बैठी रो रही थी क्योंकि वह और होप सहपाठी रही थी। And so
I looked over and she started crying, put her hand up and started walking over. और मैंने कमरे में इधर उधर देखा, वो नर्स रोने लगी और एक और हाथ से इशारा किया और साथ साथ चल दी। I looked over and shook her. मैंने होप को देखा और उसे झंझोड़ दिया। There she was. She went down from about 120 pounds to about 60. वह वही थी, 120 पाउंड वाली देह अब 60 पाउंड की जर्जर स्थिति में पड़ी थी। And I shook her. मैंने फिर उसे हिलाया। If I live to be 100 years old, I'll never forget what happened. और तब जो हुआ उसे मैं 100 वर्ष भी जीऊं तो कभी भूल नहीं पाऊंगा। She turned over and those great, big, pretty eyes looked up at me. उसने मेरी ओर पलटकर अपनी बड़ी बड़ी प्यारी आंखों से मुझे देखा। She smiled. She said, "Why did you call me back, Billy?" वो मुस्कुरा दी और बोली, बिली, तुमने मुझे वापस क्यों बुलाया? I said, "Honey, I just got the cash. मैंने कहा, प्रिय, मुझे अब पैसे मिल गए हैं। I had to work. We was way in debt and hundreds of dollars a doctor bill and nothing to pay it with." मुझे काम करना पड़ा था, हम कर्जे में थे और सैकड़ों डॉलर का डॉक्टर का बिल था जिसे भुगतान करने के लिए कुछ भी नहीं था। And I just had to work. इसलिए मुझे काम करना पड़ा था। And I've seen her 2 or 3 times a day and every night. And then when she was in that condition, मैं दिन में 2-3 बार उससे मिलने आता था और रात को उसके पास रहता था जबकि उसकी दशा इतनी खराब चल रही थी। I said, "What do you mean call you back?" मैंने उससे पूछा, वापस क्यों बुलाया से तुम्हारा क्या मतलब है? She said, "Bill, you've preached about it, you've talked about it, but you don't have no idea what it is." उसने कहा, बिल, तुमने इसके बारे में प्रचार किया, बातें करी, मगर तुम नहीं जानते कि ये क्या है। I said, "What are you talking about?" मैंने पूछा, तुम किसके बारे में कह रही हो? She said, "Heaven." उसने कहा, स्वर्ग के बारे में। She said, "Look," she said, "I was being escorted home by some people's man or women or something that was dressed in white." उसने कहा, देखो, मुझे कुछ लोग स्त्री पुरुष या कुछ वैसे से सफेद वस्त्र पहने हुए मेरी सुरक्षा करते हुए मुझे मेरे स्वर्गीय घर में ले जा रहे थे। And she said, "I was at ease and peace." और उसने बताया, मैं बहुत आराम और शांति में थी। She said, "Big pretty birds flying from tree to tree." बड़ी बड़ी सुंदर चिड़ियाएं एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ रही थीं। She said, "Don't think I'm beside myself." उसने कहा, तुम ये मत सोचना कि मैं अपने आप में डूबी भ्रम में हूँ। She said, "Billy, I'm going to tell you our mistake." उसने कहा, बिली, मैं तुमको हम दोनों ने जो करी है वो गलती बताने जा रही हूँ। She said, "Sit down." I didn't. I knelt down, took her hand. उसने कहा, बैठ जाओ। मैं नहीं बैठा और उसके पास घुटनों पर झुक गया और उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। She said, "You know where our mistake is?" उसने पूछा, क्या तुम जानते हो कि हमसे कहाँ गलती हुई? And I said, "Yes, sweetheart, I do." और मैंने कहा, हाँ प्रिय, मुझे मालूम है। She said, "We should have never listened to Mama. Them people were right." तुम्हें मामा की बात कभी नहीं सुननी चाहिए थी, वे लोग ठीक राह पर थे। I said, "I know it." मैंने कहा, मुझे मालूम है। She said, "Promise me this, that you'll go to those people." Said, "Because they're right." उसने कहा, मुझसे वादा करो कि तुम उन लोगों के साथ जाओगे क्योंकि वो ठीक हैं। And she said, "Raise my children like that." मेरे बच्चों को उनकी तरह से बनाना। She said, "I want to tell you something." She said, "I'm dying." I said, I don't dread going." Said, "It's beautiful." और उसने कहा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, मैं मर रही हूँ मगर मैं भयभीत नहीं हूँ, वहाँ जाने से घबरा नहीं रही हूँ, वह अति सुंदर स्थान है। She said, "The only thing I hate to leave you, Bill." उसने कहा, बस मुझे यही बुरा लग रहा है कि मैं तुमको छोड़कर जा रही हूँ, बिल। And I know you got these 2 little children to raise. मुझे मालूम है कि तुम्हें इन दोनों छोटे बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करना है। She said, "Promise me that you'll not stay single and let my children be pulled about from pillar to post." उसने कहा कि मुझसे वादा करो कि तुम अकेले नहीं रहोगे, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे दर दर की ठोकरें खाते फिरे। That's a sensible thing for a 21-year-old mother. उस 21 साल की माँ के लिए इस प्रकार से सोचना बड़ी समझदारी की बात थी। And I said, "I can't promise that, Hope." मैंने कहा, होप, मैं इस बात का वायदा नहीं कर सकता। She said,
please promise me. उसने कहा कृपया वादा करो। Said, one thing I want to tell you. उसने कहा एक बात और मैं तुमको बताना चाहती हूँ। Said, you remember that rifle? I'm just crazy about guns. क्या तुम्हें उस राइफल की बात याद है? बंदूकों का मैं दीवाना रहा हूँ। And she said, you wanted to buy that rifle that day and you didn't have enough money to make the down payment. कहा उस दिन तुम उस राइफल को खरीदना चाहते थे और तुम्हारे पास उसे खरीदने के लिए पर्याप्त रुपए नहीं थे। I said, yes. मैंने कहा हाँ। She said, I've been saving my money, my nickels, to try to make that down payment on that rifle for you. उसने कहा मैं पैसे बचाकर जमा करती रही हूँ, निकल्स मैं जमा करने की कोशिश कर रही थी ताकि तुम्हारे उस राइफल का मूल्य चुका सकूं। She said, now when this is over and you go back home, look up on the duofold, or the folding bed, under that piece of paper on top, and you'll find the money there. उसने कहा जब ये सब मामला निबट जाए और तुम घर जाओ तो वहाँ फोल्डिंग बेड के नीचे कागज में वो रुपए तुम्हें मिल जाएंगे। She said, promise me that you'll buy that rifle. उसने कहा वादा करो तुम वो राइफल खरीदोगे। You don't know how I felt when I seen that $1.75 in nickels laying there. आप नहीं जानते कि निकल के रूप में उन 75 सेंट डॉलर को वहाँ रखे देखकर मुझे कैसा महसूस हुआ होगा। I got the rifle. मैंने राइफल खरीद ली। And she said, now don't live single. और होप ने कहा अब देखो तुम अकेले मत रहना। And she said she didn't know that what was fixing to happen in a few hours to man. वो नहीं जानती थी कि कुछ घंटों बाद ही क्या घटित होने वाला था। And I held her darling hands while the angels of God packed her away. और मैंने उसके प्यारे हाथों को थाम लिया था जब कि परमेश्वर के दूत उसे लेकर चले थे। I went home. I didn't know what to do. मैं घर वापस पहुंचा और नहीं समझ पा रहा था कि क्या करूं। I laid down there at night and I heard, I think a little mouse was in the old grate where we had some papers in there. रात को जब मैं वहां लेटा था तो मैंने खटर पटर की आवाज सुनी। पुराने कागजातों में एक चूहा था जो शोर कर रहा था। I shut the door with my foot in there, hung her kimono on the back, laying down there in the morgue. और मैंने पैर से द्वार को भेड़ दिया और देखा कि उसके पीछे उसका कुर्ता टंगा था और वो मुर्दा घर में लेटी थी। And just in a little bit, someone called me, said, Billy. और कुछ पलों में ही मुझे किसी ने पुकारा, बिली। This Brother Frank Broy, he said, your baby's dying. ये भाई फ्रैंक ब्रॉय थे जिन्होंने कहा तुम्हारी बच्ची मर रही है। I said, my baby? मैंने कहा मेरी लड़की? He said, yes, Sharon Rose. उन्होंने कहा हाँ शरोन रोज। Said, doc's up there now and said she's got tubercular meningitis. She nursed it from her mother. डॉक्टर वहाँ उसके पास है और कह रहा है कि उसे ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस हो गया है और ये उसे उसकी माँ से लगा है। And said she's dying. वो कह रहा है कि वो मरने वाली है। I got in the car, went up there. मैं कार में बैठ गया और वहाँ पहुँचा। And there she was, a sweet little thing. और वो प्यारी सी छोटी सी चीज वहाँ थी। And they rushed her to the hospital. वो उसे लेकर अस्पताल को दौड़े। I went out to see him. मैं उसे वहाँ देखने गया। Sam come up and said, Billy, don't you go in that room. You got to think of Billy Paul. Said she's dying. सैम ने मुझे रोकते हुए कहा बिली तुम उसके कमरे में मत जाओ, तुम्हें बिली पॉल के बारे में सोचना है। उन्होंने कहा वो तो जा ही रही है। I said, Doc, I got to see my baby. मैंने कहा डॉक्टर मुझे अपनी बच्ची को देखना है। He said, no, you can't go in. उन्होंने कहा नहीं तुम भीतर नहीं जा सकते। Said she's got meningitis, Billy. You'd pack it to Billy Paul. उसे मेनिंजाइटिस है बिली और तुम्हारे द्वारा वो बिली पॉल को लग सकती है। I waited till he got out. I couldn't stand to see her daughter and mother laying down there in the undertaker's establishment. मैंने तब तक प्रतीक्षा करी जब तक डॉक्टर सैम बाहर नहीं आए। उसे मरते हुए देखने की मुझे मनाही थी और उसकी माँ वहीं निचले भाग में मुर्दा घर में लेटी थी। I tell you, the way of a transgressor is hard. मैं आपको बताता हूँ कि घुसपैठ करने का काम भी बड़ा मुश्किल होता है। And I went, slipped in the door, and when Sam went out, the nurse went out, I went out into the basement. मैं चुपके से द्वार में घुसा और जब सैम और नर्स बाहर आए तो मैं भूतल में चुपके से पहुंच गया। It's a little bitty hospital. ये बड़ा छोटा सा अस्पताल था। She's in an isolated place, and the flies is in her little eyes. एकदम अलग जगह पर उसे रखा गया था और उसकी छोटी छोटी आंखों के पास मक्खियां भिनभिना रही थीं। They had a little, what we call a mosquito bar, a little netting over her eyes. उसकी आंखों पर एक छोटी सी मच्छर वाली जाली पड़ी हुई थी। And she, with a little spasm, her little
fat leg was moving up and down like that in her little hands with that spasm. शरीर के ऐंठने से उसकी छोटी सी मोटी टांगें ऊपर नीचे हो रही थीं और हाथ भी हिल रहे थे। I looked at her and she's just big enough to be cute, about 8 months old. और मैंने उसकी ओर देखा, वो मात्र 8 माह की बच्ची, बड़ी प्यारी और आकर्षक थी। And her mother used to set her out there with her little 3 corners on, you know, in the yard when I come up. जब मैं काम से घर आता था तो उसकी माँ उसे त्रिकोण कलोट पहनाकर बाहर बिठा दिया करती थी। I'd toot the horn and she'd go goo 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 reaching for me, you know. और आप देखिए कि जब मैं कार का हॉर्न बजाता तो मेरे पास आने के लिए गुग 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 की आवाज करती मचलने लगती थी। There laid my darling dying. और वही मेरी प्यारी बच्ची वहाँ पड़ी मर रही थी। I looked down to her and I said, Sherry, you know Daddy? और मैंने झुककर उसे देखा और कहा, देखो शेरी, तुम पापा को पहचानती हो? You know Daddy, Sherry? पापा को पहचानती हो शेरी? And when she looked, she was suffering so hard that one of them pretty little blue eyes had crossed. और जब उसने देखा तो छोटी प्यारी नीली आंखें पलट गईं, इतनी अधिक वो बीमार थी। It like to tore my heart out of me. इसको देखकर मानो मेरा हृदय फटकर बाहर को आ गया था। I knelt down. I said, Lord, what have I done? मैं घुटनों के बल झुक गया और प्रार्थना करी, प्रभु मुझसे क्या गलती हुई है? Have not I preached the gospel on the street corners? I've done everything that I know to do. क्या मैंने सड़कों के किनारे पवित्र सुसमाचार प्रचार नहीं किया? जो कुछ मैं जानता था मैंने वैसा ही सभी कुछ किया है। Don't hold it against me. I never call them people trash. उस बात का जिम्मेदार मुझे मत बना प्रभु कि मैंने उन लोगों को कभी कूड़ा करकट, मैंने कभी नहीं कहा उन्हें कूड़ा करकट। It was her that called them people trash. ये तो वो महिला थी जिसने उन लोगों को कूड़ा करकट कहा था। I said, I'm sorry it all happened. Forgive me. Don't take my baby. मैंने कहा मुझे दुख है कि ये सब हुआ, मुझे क्षमा कर दे और मेरी बच्ची को मुझसे न छीन। And while I was praying, looked like a sheet or cloth come down. और जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मुझे लगा कि एक काला सा कोई कपड़ा या चादर ऊपर से नीचे को उतरी है। I knowed he had refused me. तब मैं जान गया था कि परमेश्वर ने मेरी विनती अस्वीकार कर दी है। Now there was the hardest and the most treacherous time of my life. अब देखिए कि वो समय मेरे जीवन का सबसे कठिन और दुखदायी समय था। When I raised up and looked at her, and I thought, Satan put in my mind, जब मैं प्रार्थना करके खड़ा हुआ और मैंने उसे देखा, शैतान ने मेरे मन में ये विचार डाले, well, you mean as hard as you've preached and the way that you've lived, and now when it comes to your own baby, he'll turn you down. कैसे कैसे परिश्रम से तूने वचन प्रचार किया और कैसा अच्छा जीवन तूने बिताया, और जब तेरे अपने बच्चे की चंगाई का समय आया तो उसने तेरी बात गिरा दी। I said, that's right. If he can't save my baby, then I can't. और मैंने मन में कहा, हाँ ये सच है, अगर वो मेरे बच्चे को नहीं बचा सकता तो मैं नहीं। I stopped. ये सोचते ही मैं सहसा रुक गया। I just didn't know what to do. मैं बस समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। And then I said this, I said, Lord, you gave her to me and you taken her away. Blessed be the name of the Lord. और तब मैंने यूं कहा, प्रभु तूने मुझे उसे दिया था, तूने ही वापस ले लिया है, प्रभु का नाम धन्य हो। If you take even me, I'll still love you. यदि तू मेरे प्राण भी ले ले तो अभी मैं तुझे प्यार करूंगा। And I put my hand over on her and I said, bless you, sweetheart. और मैंने अपना हाथ उसके ऊपर रखा और कहा, मेरे हृदय के टुकड़े तुझे आशीष मिले। Daddy wanted to raise you with all my heart. I wanted to raise you and raise you to love the Lord. तेरा पिता तुझे अपने पूरे हृदय से पाल पोस कर बड़ा करना चाहता था। मैं तुझे बड़ा करके परमेश्वर से प्रेम करने वाला बनाना चाहता था। But the angels are coming for you, sweetheart. मगर मेरे दिल के टुकड़े तुझे स्वर्गदूत लेने आ रहे हैं। Daddy will take your little body down and lay it on the arms of Mama. I'll bury you with her. तेरा डैडी तेरी छोटी सी देह को उठाकर तेरी माँ की बाहों में सौंप देगा। मैं तुझे तेरी माँ के पास ही दफन करूंगा। Someday Daddy will meet you. You just wait up there with Mama. और एक दिन तेरे डैडी तुझे जरूर मिलेंगे। तू अपनी माँ के साथ उसी जगह इंतजार करना। When her mother was dying, she said, last word she said, Bill,
Stay on the field. जब उसकी मां मर रही थी तो उसने कहा था, उसके अंतिम शब्द थे, बिल, अपने काम में लगे रहना, परमेश्वर का काम करते रहना। She said, I said, if I'm on the field when he comes, I'll get the kids and meet. मैंने जवाब दिया था, जब प्रभु आए, यदि उस समय मैं अपने काम में हुआ तो मैं बच्चों सहित तुमसे मिलूंगा। If I'm not, I'll be buried by you. यदि यूं ना हुआ तो मुझे तुम्हारे पास दफन कर दिया जाएगा। And you go over on the right-hand side of the great gate, and when you see all of them come in, stand there and start hollering, Bill, 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 just as loud as you can. I'll meet you there. और उस दिन तुम उस महान द्वार के सीधे हाथ की ओर जाना, और तुम जब उन सभी प्राचीन भाइयों को उधर से आते देखो तो जोर जोर से चिल्लाना, जितने जोर से चिल्ला सकती हो, बिल, 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 मैं तुमको वहां मिलूंगा। I kissed her goodbye. मैंने अपनी उस बच्ची को प्यार किया और अलविदा कहा। I'm on the battlefield today. आज मैं अपने काम की युद्ध भूमि पर तैनात हूँ। That's been nearly 20 years ago. तब से अब तक लगभग 20 साल बीत चुके हैं। I got my date with my wife. I'm going to meet her. मेरा कार्यक्रम पत्नी से मिलने का तय है और मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। I took the little baby when it died and put it on the arms of the mother, and we take it out to the cemetery. पर जब वो मर गई तो मैंने उस छोटी बच्ची को उठाया और उसकी माँ की बाहों में थमा लिया और हम उन्हें उसी कब्रिस्तान में दफनाने ले गए। I stood there to hear Brother Smith, the Methodist preacher that preached the funeral. और मैं वहाँ खड़ा हुआ, मेथोडिस्ट प्रचारक भाई स्मिथ को दफनाने की रस्म पढ़ते हुए सुनता रहा। Ashes to ashes and dust to dust. वो कह रहे थे कि राख में राख, अब माटी में माटी मिल जाएगी। And I thought heart to heart. और मैंने कहा, हृदय हृदय में। There she went. और इस तरह वो चली गई। Not long after that, I took little Billy there one morning. He's just a little bitty feller. He was. उसके बाद अधिक दिन नहीं बीते थे कि एक सुबह में बिली को लेकर वहां पहुंचा। उस समय बिली पॉल बहुत छोटा था। That's the reason he sticks with me and I stick with him. I had to be both Papa and Mama both to him. यही वजह है कि वो मुझसे और मैं उससे चिपके से रहते हैं, क्योंकि मुझे उसके लिए बाप और माँ दोनों बनना पड़ा है। I'd take his little bottle. We couldn't afford to have a fire at night to keep his milk warm. मुझे हर समय उसकी दूध की बोतल अपने साथ रखनी पड़ती थी, क्योंकि हमारा बूता नहीं था कि रात में उसका दूध गर्म करने के लिए ईंधन जलाएं। I lay it under my back like this and keep it warm by the heat of my body. मैं उसकी बोतल को इस तरह अपनी कमर के नीचे रखकर सोता था ताकि मेरे शरीर की गर्मी से वो गर्म रहे। We've stuck together like buddies. हम दोनों दो अंकुरों की तरह साथ साथ रहे हैं। One of these days when I go off the field, I want to hand him the word and say, "Go on, Billy. You stay with it." और एक दिन जब मैं विश्राम पाऊंगा तो ये वचन उसे सौंप कर कहूंगा, बिली जाओ और सर्वदा वचन को थामे रहना। Some people wonder why I got him with me all the time. I can't give him up. कुछ लोग आश्चर्य करते होंगे कि मैं हर समय उसे अपने साथ क्यों रखता हूँ, मैं उसे छोड़ ही नहीं सकता। He's even married, but I still remember she told me stay with him. गो कि आज वो शादीशुदा है, मगर उसकी माँ ने कहा था उसके साथ साथ रहना। We stuck together like buddies. और एक साथ निकली कलियों की तरह हम साथ साथ रहे हैं। Remember walking around town, the bottle under my arm. He'd get to crying. मुझे याद है ये कहीं भी रोने लगेगा, ये जानकर उसकी बोतल उस समय भी मेरे हाथों में रहती थी जब मैं शहर में इधर उधर कहीं जाता था। One night he was walking out in the backyard where just when she was fixing to have him, she was smothered, not just a girl, you know. एक रात वो मकान के बाहर पिछवाड़े में निकल गया। जब ये होने वाला था तो उसकी माँ स्वयं ही एक लड़की सी थी, वह परेशान होती थी। When I'd walk back and forth from the old oak tree in the back of the yard. और मैं पिछवाड़े बलूत के पेड़ के नीचे टहलने लगता था। He was crying for his mama, and I didn't have his mama to take him to. और उस दिन वो उसी तरह पिछवाड़े अपनी माँ के लिए रो रहा था और मेरे पास उसे देने के लिए कोई माँ नहीं थी। I packed him. I said, "Oh, honey," I said. उसे गोद में उठाकर मैंने कहा, ओ मेरे चांद। He said, "Daddy, where's my mama? Did you put her into that ground?" उसने पूछा, डैडी मेरी मामा कहाँ है? क्या आपने उन्हें वहाँ जमीन में रखा है? I said, "No, honey, she's ours. She's up in heaven." मैंने कहा, नहीं बेटे, वो ठीक है, वो स्वर्ग में है। He said something there like to kill me one afternoon. और एक दोपहर उसने मुझसे ऐसी बात कही कि मानो मेरे काटो तो खून नहीं।
He was crying. It was long, late in the evening. I was patting him on my back, patting him on my shoulder, patting him like this. वो रो रहा था और रोते रोते शाम बीतने को थी और मैं कभी उसे पीठ पर कभी कांधे पर बिठाकर थपकियां दे रहा था। He said, "Daddy, please go get Mama and bring her here." और उसने कहा, डैडी कृपया जाइए और माँ को यहाँ ले आइए। And I said, "Honey, I can't get Mama." और मैंने कहा, बेटे मेरे पुत्र, मैं तेरी मामा को नहीं ला सकता। Jesus said, "Well, tell Jesus to send me my Mama. I want her." उन्हें यीशु, और तभी वो बोला, यीशु से कहिए कि वो मेरी माँ को भेज दे, मुझे उसकी जरूरत है, मुझे मेरी माँ चाहिए। I said, "Well, honey, I mean you're going to go see her sometime." और मैंने कहा, प्रिय बेटे, मैं और तुम एक समय आएगा जब उनसे मिलेंगे। And he stopped and said, "Daddy." और वो सहसा खामोश हो गया, फिर बोला, डैडी। And I said, "Yes." मैंने कहा, हाँ। Said, "I see Mama up there on that cloud." उसने कहा, मैंने माँ को ऊपर वहां उस बादल में देखा है। Like to kill me. मुझे ऐसा लगा मानो मेरा दम निकल गया हो। I thought, I see Mama up there on that cloud. मैंने सोचा, या खुदा क्या कह रहा है, मैंने मामा को ऊपर बादलों पर देखा है। I just almost fainted. मैं लगभग बेहोश सा हो गया। I hugged the little fella up to my bosom like that, just held my head down, went on in. मैंने उस छोटे से बिल्ली को सीने से लगाकर चूमा और सिर झुकाए खड़ा सा रह गया। Days passed. I couldn't forget it. दिन बीतते रहे, मैं उन्हें भूल नहीं पाया। I tried to work, couldn't go back home. It wasn't home no more. I wanted to stay. मैंने काम में मन लगाना चाहा, घर वापस जाने को मन नहीं करता था। अब वो घर भी रह तो नहीं गया था, मैं फिर भी वहीं रहना चाह रहा था। We didn't have nothing but just that old tore up furniture, but it was something that she and I had enjoyed together. It was home. हमारे पास टूटे फूटे फर्नीचर के सिवाय घर में कुछ नहीं था, मगर वो फिर भी बहुत था, क्योंकि होप और मैं साथ साथ उसी घर में आनंद पूर्वक रहे थे। मेरा घर वही था। And I remember one day I was trying to work in public service. और मुझे याद है एक दिन मैं सार्वजनिक विभाग की विद्युत इकाई में अपने काम पर था और काम करने की कोशिश कर रहा था। I went up to fix an old secretary was hanging down. It was real early in the morning. वहाँ एक जगह कुछ पुराने तार टूट गए थे, उन्हें लगाने के लिए बहुत सुबह मैं काम पर गया था। And I climbed up this cross and और मैं एक लोहे की कैंची पर चढ़ गया। I couldn't give that baby up. I could see my wife going, but that baby going, just a little bitty thing. और मैं मन से अपनी छोटी बच्ची की याद नहीं निकाल पा रहा था और मुझे लगता कि मेरी पत्नी वो जा रही है, मगर वो बच्ची जाती हुई छोटी सी कोई चीज के रूप में दिखाई देती थी। And I was on there and I was singing, "On the hill far away stood an old rugged cross." मैं वहाँ ऊपर चढ़ा गा रहा था, वहाँ दूर पहाड़ी पर एक पुरानी जर्जर सलीब खड़ी है। And the primaries run down to the transformer and went out in the, secondary. और उसी समय बिजली ट्रांसफार्मर में आ गई और फिर उन्हीं तारों में आई जिन्हें मैं ठीक कर रहा था। And I was hanging up there on it. मैं उस समय ऊपर टंगा था And I happened to look at the sun coming up behind me. और मैंने देखा मेरे पीछे सूरज निकल आया था। And there my hand stretched out and the sign of that cross on the hillside. और तब सहसा दूर पहाड़ी की ओर मैंने सलीब को देखा और मेरे हाथ उस ओर फैल गए। I thought, yes, it was my sins that put him there. मैंने सोचा, हाँ मेरे पाप ही हैं जिन्होंने उसे सलीब पर चढ़ाया है। I said, Sharon, honey, Daddy wants to see you so bad, honey. और मैंने कहा, शारोन मेरी बच्ची, तेरा डैडी तुझे देखना चाहता है, तुझे बुरी तरह याद करता है। I would like to hold you in my arms again, you darling little thing. मेरी प्यारी छोटी सी चीज, किस प्रकार मैं तुझे अपनी बाहों में लेने को तरस रहा हूँ। I got beside myself. It had been weeks. उसकी मौत को कई सप्ताह बीत चुके थे और इस समय मैं अपने ही विचारों में गुम हो गया था। I pulled off my rubber glove. There's 2,300 volts running right beside of me. मैंने अपने रबर के दास्ताने उतार लिए और उस समय 2300 वोल्ट का करंट तारों में ठीक मेरे सामने बह रहा था। I pulled off my rubber glove. I said, God, I hate to do this. I'm a coward. और मैंने अपने दास्ताने उतार लिए और कहा, परमेश्वर, इस प्रकार से आत्महत्या करना बुज़दिली है, मैं ऐसा चाहता तो नहीं हूँ। But Sherry, Daddy's going to see you and Mama just in a few minutes. मगर शैरी, तेरे डैडी अब बस कुछ ही क्षणों में तुझसे तेरी मम्मी से मिलने आ रहे हैं। Started pulling off my glove to put my hand on that 2,300. मैंने हाथों से रबर के दास्ताने उतारने के लिए उन्हें खींचा,
ताकि 2300 वोल्ट के उन तारों पर हाथ रख दूं? Break, well, you even have no blood left in you. क्या होगा? वो फट जाएंगे, शरीर फूट जाएगा, आपके शरीर का सारा लहू जल जाएगा, एक बूंद भी नहीं बचेगी। So I started pulling that glove off, and something happened. और जब मैंने अपने दास्ताने उतारने चाहे तो कुछ ऐसा घटित हुआ। When I come to, I was sitting on the ground with my hands up like this to my face, crying. और जब मैं अपने आपे में आया तो पाया मैं जमीन पर बैठा था और चेहरे पर इस प्रकार अपने हाथ रखे रो रहा था। It was God's grace, or I wouldn't have been having a healing service here. I'm sure of that. ये सब परमेश्वर का अनुग्रह था, वरना आज मैं इस प्रकार चंगाई सभा में भाग न ले रहा होता। मुझे इस बात का विश्वास है। It was Him protecting His gift, not me. ये परमेश्वर ही था जिसने मुझे नहीं वरन मेरे द्वारा दिए जाने वाली अपनी इस चंगाई के दान की रक्षा करी थी। I started home. I quit. Put my tools away and went back. I said, I'm going home. मैं घर के लिए चला, मैंने अपने औजार रख दिए और लोगों से कहा मैं घर वापस जा रहा हूँ। I started around the house and I picked up the mail in the house. मैं घर के पास पहुंचा और अपनी डाक उठा ली। Kind of cold, and I went in. मौसम कुछ ठंडा सा था, मैं घर में गया। We had one little room. I was sleeping on a little cot there, and the frost coming up. And that old stove. हमारे घर में एक ही छोटा सा कमरा था जिसमें एक छोटी सी चारपाई पर मैं सोता था और वहाँ एक बड़ा एक वही स्टोव था। मेंढक घर में आ जाया करते थे। I took the mail and I looked in the mail. मैंने डाक देखनी शुरू करी। But the first thing on there was her little Christmas saving, 80 cents. Miss Sharon Rose Branham. अब पहली चीज जो मैंने देखी वो उसके उन 80 सेंट का कागज था जिसे उसने क्रिसमस बचत के रूप में जमा किया था और उस पर लिखा था मिस शॉरोन रोज ब्रहनम। There it was all over again. और फिर से उसकी स्मृति ताजा हो उठी थी। I'd been game warden. I reached in there and got my gun, pistol, out from the holster. मैं शिकार संरक्षक रहा था। मैंने चमड़े की थैली से अपना रिवॉल्वर निकाल लिया। I said, Lord, I can't go this anymore. I'm dying. I'm so tormented. मैंने कहा प्रभु इस तरह और नहीं जी सकता, मुझे घोर कष्ट हो रहा है, मैं मर रहा हूँ। I pulled the hammer back on the gun, put it up to my head, kneeling there on that cot in that dark room. मैंने बंदूक का खटका पीछे सरकाया और उसे सिर से लगाया और उस अंधेरे कमरे में खाट के पास घुटनों के बल छुप गया। I said, Our Father, Lord in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thine will be done. मैंने कहा हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो। I squeezed that trigger as hard as I could. और मैंने कोशिश करके जितनी जोर से बंदूक का घोड़ा दबा सकता था दबा दिया। I said, On earth as it is in heaven, give us this day our daily bread. और बोला तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है जमीन पर भी हो, हमारी आज की रोटी हमें दे। And it wouldn't go off. बंदूक नहीं चली। I thought, oh God, are you just tearing me to pieces? What have I done? You won't even let me die. और मैंने सोचा हे परमेश्वर क्या तू मुझे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता है? मैंने ऐसा क्या किया है कि तू मुझे मरने भी नहीं देता? And I threw the gun down and went off and shot through the roof. और मैंने बंदूक नीचे फर्श पर फेंक दी। फेंकते ही बंदूक चल गई और गोली कमरे से बाहर निकल गई। I said, God, why can't I die and get out of it? I just can't go no farther. You've got to do something to me. और मैंने कहा परमेश्वर मैं मरकर क्यों नहीं इस हालत से छुटकारा पा सकता? इस तरह मैं और नहीं चल पाऊंगा। आपको मेरे लिए कुछ ना कुछ करना होगा। And I fell over and started crying on my little old dirty bunk there. और मैं अपनी पुरानी गंदी शैया पर गिर पड़ा और रोता रहा। And I must have went to sleep. और शायद तब मुझे नींद आ गई होगी। I don't know whether it was asleep or what happened. मुझे नहीं पता कि उस समय मैं सोया हुआ था या कुछ और घटित हुआ था। And I thought I was going down along through the prairie, singing that song. तब मुझे लगा कि मैं किन्हीं वृक्षहीन घास के लंबे चौड़े मैदान में गीत गाता जा रहा हूँ। There's a wheel on the wagon is broken, sign on the ranch for sale. गाड़ी का एक पहिया टूटा है जो कि गाड़ी के बिकाऊ होने का चिन्ह है। As I went along, I noticed an old covered wagon, like a little old prairie schooner.
and the wheel was broke. और जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे एक पुरानी बंद गाड़ी आती दिखाई दी जिसका एक पहिया टूटा हुआ था। Of course, that represented my broken family. कोई संदेह नहीं कि ये मेरे टूटे परिवार का प्रतीक था। And as I got close, I looked and there stood a real pretty young girl, about 20 years old, white flowing hair and blue eyes, dressed in white. क्यों ही मैं उसके निकट पहुंचा तो मैंने देखा वहाँ एक अत्यंत सुंदर जवान लगभग 20 वर्ष की लड़की खड़ी थी जिसका रंग सफेद, नीली आंखें और बाल लहरा रहे थे। वो सफेद वस्त्र पहने थी। I looked over at her. I said, "How do you do?" Went on. मैंने उसकी ओर देखा और कहा, आप कैसी हैं? और आगे बढ़ गया। She said, "Hello, Dad." उसने कहा, हेलो डैडी। I turned back and I said, "Dad." मैं पीछे घूमा और कहा, डैडी? Well, I said, "How, Miss, can I be your daddy when you're as old as I am?" क्यों युवती, क्या मैं तुम्हारा पिता हो सकता हूँ जबकि तुम मेरी उम्र की सी हो? She said, "Daddy, you just don't know where you're at." उसने कहा, डैडी बस आपको ये पता नहीं है कि आप कहाँ हैं। And I said, "Well, what do you mean?" मैंने पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? She said, "This is heaven." उसने कहा, ये स्वर्ग है। Said, "On earth I was your little Sharon." धरती पर मैं तुम्हारी छोटी सी बच्ची शारोन थी। Well, I said, "Honey, you was just a little baby." मैंने कहा, ऐसा कैसा है? तुम तो बहुत छोटी सी बच्ची थी। Said, "Daddy, little babies are not little babies. Sure, they're immortal. They never get old or never grow." यहाँ पर छोटे बच्चे नहीं रहते, वे अविनाशी दशा में आ जाते हैं। वे कभी बूढ़े नहीं होते, न ही बढ़ते हैं। And I said, "Oh, Sharon, honey, you're a pretty young woman." और मैंने कहा, अरे शेरोन बेटी, तुम तो बड़ी प्यारी नवयुवती बन गई हो। She said, "Mama's waiting for you." उसने कहा, माँ आपका इंतजार कर रही है। I said, "Where?" और मैंने पूछा, किधर? She said, "Up at your new home." उसने कहा, ऊपर तुम्हारे नए मकान में। I said, "New home?" मैंने पूछा, नया घर? Branhams are vagabonds. They don't have homes. They just... ब्रहणम लोगों का घर नहीं होता, वे तो खाना बदोश होते हैं। I said, "Well, I never had a home, honey." बेटी, मेरे पास तो कोई घर कभी नहीं रहा। She said, "But you got one up here, Daddy." उसने कहा, मगर डैडी यहाँ आपके लिए घर है। I don't mean to be a baby, but it's just so real to me. मैं बच्चों की तरह से रोना नहीं चाहता, मगर ये सब मेरे लिए कितना सच्चा है, वास्तविक है। As I start to thinking of it, it all comes back again. जब मैं वो सब सोचता हूँ तो सब कुछ फिर से हरा उठता है। She said, "You got one here, Daddy." उसने कहा, तुम्हारे लिए एक मकान यहाँ है डैडी। I know I got one over there. Someday I'll go to it. मुझे पता है मेरे पास एक घर वहाँ है, एक दिन मैं वहाँ जाऊंगा। She said, "Where's Billy Paul, my brother?" उसने पूछा, मेरा भाई बिली पॉल कहाँ है? I said, "Well, I left him at Miss Broy's just a few minutes ago." मैंने कहा, उसे कुछ क्षण पहले ही श्रीमती ब्रॉयस के यहाँ मैंने छोड़ा है। Said, "Mother wants to see you." वे बोली, माँ तुमसे मिलना चाहती है। And I turned and looked, and there was great big palaces, and the glory of God coming up around them. और मैंने घूम कर देखा तो वहाँ बड़े बड़े महल थे और परमेश्वर की महिमा उनके चारों ओर भरी थी। And I heard an angelic choir singing, "My home, sweet home." और मैंने स्वर्गदूतों की मंडली को गीत गाते सुना जो गा रहे थे, माई होम स्वीट होम, मेरा घर प्यारा घर। I started up a long steps running just as hard as I could. मैं तेजी से दौड़ता सा उधर चला। And when I got to the door, there she stood, a white garment on, that black hair long, holding down her back. और जब मैं द्वार पर पहुंचा तो होप वहाँ खड़ी थी। वो सफेद वस्त्र पहने थी और उसके काले लंबे बाल पीठ पर झूल रहे थे। She raised out her arms as she always did when I come home tired from work or something. उसने उसी प्रकार अपनी बाहें फैला दी जैसे वो मेरे काम से थक कर घर वापस आने पर किया करती थी। I caught her by the hands and I said, "Honey, I've seen Sharon down there." मैंने उसके हाथ पकड़कर कहा, प्रिय, मैंने शारोन को वहाँ नीचे देखा है। I said, "She made a pretty girl, didn't she?" मैंने कहा, वो बहुत प्यारी लड़की बन गई है। She said, "Yes, Bill." उसने कहा, हाँ बिल। She said, "Bill," put her arms around me and she said, just around my shoulders. She started patting me. She said, "Stop worrying about me and Sharon." उसने अपने हाथ मेरे चारों ओर कसते हुए कंधों को थपथपाते हुए कहा, मेरी और शिरोन की चिंता करना छोड़ दो।
I said, honey, I can't help it. मैंने कहा प्रिय, ऐसा करना मेरे वश में नहीं है। She said, now Sharon and I are better off than you are. उसने कहा देखो मैं और शेरोन यहाँ तुमसे बहुत अच्छी हालत में हैं। And said, don't worry about us no more. Will you promise me? हमारे लिए अब और चिंता मत करना, क्या तुम वादा करोगे? And I said, I've been so lonesome for you. And for Sharon, and Billy cries all the time for you. और मैंने कहा हो, तुम्हारे और शेरोन के बिना मैं बहुत अकेला महसूस करता हूँ, सूना महसूस करता हूँ, और बिली सारे समय तुम्हारे लिए रोता रहता है। I said, I don't know what to do with him. मैंने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसके लिए क्या करूं। And she said, it'll be all right, Bill. और उसने कहा सब ठीक हो जाएगा बिल। She said, just promise me you won't weary no more. उसने कहा तुम बस वादा करो कि अब आगे से चिंता नहीं करोगे। And she said, won't you sit down? और उसने कहा क्या तुम बैठोगे नहीं? And I looked around, and there's a great big chair. और मैंने चारों तरफ देखा तो पाया वहाँ एक बड़ी सी कुर्सी रखी थी। And I remember I've tried to buy a chair. मुझे याद आया कि मैंने एक कुर्सी खरीदनी चाहिए थी। Now in closing, I tried to buy a chair one time. अब मैं बात समाप्त करना चाहूंगा। हाँ, तो एक बार मैंने एक कुर्सी खरीदने की कोशिश करी थी। We just had them old common wooden bottom chairs for that breakfast set. हमारे पास नाश्ते की मेज के साथ वही पुरानी लकड़ी के फट्टे वाली कुर्सियां थीं। We had to use them, the old chairs we had. और हम चाहते थे कि एक वैसी ही कुर्सी खरीद सकें जैसी यहाँ उधर पीछे है। And we could buy one of these chairs that let back in the back like I forget what kind of easy rest chair. और मैं भूल गया इन आरामदेह कुर्सियों को क्या कहते हैं, जैसे इधर पीछे है। And it cost $17. You could pay $3 down and $1 a week. और उसकी कीमत $17 थी और आप $3 नगद और $1 प्रति सप्ताह देकर कुर्सी खरीद सकते थे। And we got one. हमने एक कुर्सी इसी तरह किश्तों पर ली। And oh, when I come in, I'd work all day and preach till midnight around the streets and wherever I could preach. मैं सारे दिन काम करता, सड़कों पर आधी आधी रात तक वचन प्रचार करता और जहाँ कहीं भी जा सकता वचन सुनाता, फिर घर आकर इसी कुर्सी पर विश्राम करता था। One day I got behind on my payments. और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं समय पर कुर्सी की किस्त नहीं दे पाया। We couldn't make it, and it got day after day. हम भुगतान नहीं कर पाए थे और कई दिन बीत गए थे। And finally, one day they come and got my chair and took it. और एक दिन कुर्सी वाले आए और मेरी कुर्सी उठाकर ले गए। That night I never will forget. She had me a cherry pie baked. मैं उस रात को कभी नहीं भूल पाऊंगा। उस दिन उसने मेरे लिए रसबेरी पकाई थी। Poor little old thing. She knew I was going to be disappointed. बेचारी को उस समय पता था कि कुर्सी ना पाकर मैं निराश होऊंगा। And after supper, I said, "What's you so good about tonight, honey?" और शाम के भोजन के बाद मैंने कहा प्रिय, तुम आज रात इतनी अधिक अच्छी बातें क्यों कर रही हो? And she said, "Say, I had the boys over in the neighborhood to dig you some fishing worms. और उसने कहा मैंने पड़ोस के लड़कों से तुम्हारे लिए केंचुए खुदवाए हैं। Don't you think we ought to go down to the river and fish a little while?" क्या तुम चाहोगे कि आज रात हम नदी पर जाकर कुछ देर मछली का शिकार खेलें? And I said, "Yes, but..." और मैंने कहा हाँ, मगर। And she started crying. तभी वो रोने लगी थी। I know there was something wrong. मैं समझ गया था कि कुछ गड़बड़ हुई है। I had an idea because it already sent me a notice it's coming to get it. मुझे कुछ आभास हो गया था क्योंकि मुझे उन्होंने नोटिस भेज दिया था कि वो कुर्सी लेने आ रहे हैं। We couldn't make that $1 payment a week. We couldn't afford it. हम प्रति सप्ताह $1 का भुगतान नहीं कर पाए थे। हम कर ही नहीं सकते थे, हमारे लिए वो असंभव था। She put her arms around me and I went to the door and my chair was gone. उसने अपनी बाहें मेरे चारों ओर डाल दी थी और मैंने द्वार में घुसते हुए देख लिया था कि मेरी कुर्सी जा चुकी थी। She told me up there, she said, "You remember that chair, Bill?" और वहाँ ऊपर स्वर्ग में होप ने मुझसे कहा, बिल, क्या तुम्हें वो कुर्सी याद है? And I said, "Yes, honey, I remember." मैंने कहा हाँ प्रिय, मुझे याद है। That's what you think about, wasn't it? Yeah. उसने कहा यही वह कुर्सी है जिसके बारे में तुम सोचते थे, क्या वही नहीं है? Said, "Well, they won't take this one. This one's paid for." उसने कहा वो इसे वापस नहीं ले सकते, इसका मूल्य चुका दिया गया है। She said, "Sit down just a minute. I want to talk to you." उसने कहा 1 मिनट बैठ जाओ, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। I said, "Honey, I don't understand this." और मैंने कहा प्रिय, मैं ये सब समझ नहीं पा रहा हूँ। And she said, "Promise me, Billy."
promise me that you won't worry anymore. You're going back now. और उसने कहा, बिली मुझसे वादा करो बिली कि तुम आगे से कोई चिंता नहीं करोगे, तुम अब वापस जा रहे हो। I said, promise me you won't worry. और उसने फिर कहा, वादा करो कि तुम फिक्र नहीं करोगे। And I said, I can't do that, Hope. और मैंने कहा, होप मैं ऐसा नहीं कर सकता। And just then I come to. It was dark in the room. और तभी मैंने पाया कि मैं अपने कमरे में था, वहाँ अंधेरा था। I looked around and I felt her arm around me. मैंने चारों ओर देखा और उसकी बाहों को अपने चारों ओर अनुभव किया। I said, Hope, are you here in the room? मैंने पूछा, होप क्या तुम यहाँ इस कमरे में हो? She started patting me. और उसने मुझे थपथपाया और कहा, She said, you go make me that promise, Bill? तुम्हें मुझसे एक वायदा करना है बिल। Promise me you won't worry no more? वादा करो कि तुम आगे से चिंता नहीं करोगी। I said, I promise you. मैंने कहा, मैं वादा करता हूँ। And when then she patted me 2 or 3 times and she was gone. और उसके बाद उसने मुझे 2-3 बार थपथपाया और फिर वो चली गई। I jumped up and turned on the light, looked everywhere. She was gone. मैं उछलकर खड़ा हुआ, कमरे की बत्ती जला दी और चारों तरफ देखा, वो जा चुकी। But she's just gone out of the room. किंतु वो केवल उस कमरे से ही गई थी। She isn't gone, she's still living. She was a Christian. वो मरी नहीं, खत्म नहीं हुई, वो आज भी जीवित है, वो एक मसीही थी। Billy and I went to the grave here some time ago, packing a little flower for his mother and sister just on an Easter morning, and we stopped. एक दिन ईस्टर की प्रात मैं और बिली कुछ दिन पहले उनकी कब्र पर गए। बिली अपनी माँ और बहन के लिए एक फूल लिए था। हम वहाँ पहुँचकर रुक गए। The little fellow started crying. He said, Daddy, my mom is down there. बच्चा रोने लगा और बोला, डैडी मेरी मम्मी क्या वहाँ नीचे बंद है? I said, no, honey, no, she ain't down there. Sister ain't down there. मैंने कहा, मेरे बच्चे वो यहाँ नीचे नहीं है, तुम्हारी बहन यहाँ नीचे नहीं है। We got a folded over grave here, but way across the sea there's an open grave where Jesus rose. हमारी कब्रें यहाँ ऊपर से बंद हैं, मगर दूर समुन्दर के उस पार एक कब्र है, खुली पड़ी है, जो जिसमें से यीशु जीवित हुआ है। Someday he'll come, he'll bring sister and mama with him. और एक दिन वो आएगा और तेरी माँ और बहन को साथ लेकर आएगा। I'm on the battlefield today, friends. दोस्तों, मैं आज अपने काम की युद्ध भूमि में हूँ। I just can't tell anymore. अब मैं और अधिक नहीं कह पाऊंगा। God bless you. Let's bow our heads a minute. परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम कुछ क्षणों के लिए अपने सिरों को झुकाएं। Oh Lord. Many times, Lord, I'm sure people don't understand when they think these things come easy. हे प्रभु, बहुत बार हे प्रभु, मैं पक्की तरह जानता हूँ कि लोग समझते नहीं हैं और इन सब बातों को बहुत हल्के ढंग से सोचते हैं। But there's a great day coming when Jesus shall come and all these sorrows will be wiped away. मगर एक बड़ा महान दिन आने वाला है जब यीशु आएगा और ये सब दुख दर्द जाता रहेगा। I pray, Heavenly Father, that you help us to be prepared. हे स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उस समय की तैयारी में हमारी मदद करें। That last promise when I kissed her on the cheek that morning and I'd meet her there that day. मैंने उस सुबह उसके गालों को चूमकर उससे आखिरी वायदा किया है कि मैं उसे वहाँ मिलूंगा। I believe she'll be standing at that post screaming my name. मैं सोचता हूँ कि वो उधर खम्बे के पास खड़ी मेरा नाम पुकारेगी। I've lived true to that promise since, Lord. प्रभु, उस दिन से मैंने उस वायदे के अनुसार ही जीवन गुजारा है। Around the world, in all kinds of places, trying to bring the gospel. सारी दुनिया में सभी तरह के स्थानों पर मैंने सुसमाचार सुनाने का प्रयत्न किया है। Getting old now, tired, wore out. अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, थक गया हूँ, टूट चुका हूँ। One of these days I'm going to close this Bible for the last time. आजकल में मैं किसी दिन अपनी ये पवित्र शास्त्र की पुस्तक अंतिम बार बंद करूँगा। God, keep me faithful to the promise. और परमेश्वर मुझे किए गए वायदे के अनुसार वफादार बनाए रखना। Keep your grace around me, Lord. मेरे चारों ओर प्रभु अपने अनुग्रह को बनाए रखिए। Let me not look at the things of this life, but live for the things that's beyond. होने दे कि मैं अपने इस जीवन की चीजों को ना देखूं,
वरन उस पार जो चीजें हैं उन पर ध्यान लगाए रहूं। Help me to be honest. ईमानदार बने रहने के लिए मेरी मदद करें। I don't ask for flower bed of ease. मैं आपसे फूलों वाले बिस्तर वाला सुख नहीं मांगता। No, Lord, when my Christ died there under suffering, नहीं प्रभु, क्योंकि मेरे मसीहा ने बड़े दुख उठाकर अपने प्राण दिए थे all the rest of them died like that. I don't ask for any easy thing. और बाकी सभी लोग भी उसी तरह से मरे हैं। मैं भी आरामदायक जीवन नहीं मांग रहा हूँ। Just let me be honest, Lord, truthful. प्रभु बस मुझे अपने प्रति सच्चा और निष्ठावान बनाए रहिए। Let people love me so I can lead them to Thee. होने दीजिए कि लोग मुझे प्रेम करें ताकि मैं उन्हें आप तक ला सकूं। Someday when it's all over and we gather around under the evergreen trees, और किसी दिन जबकि ये सब समाप्त हो जाए और हम उन सदाबहार वृक्षों के तले जमा हुए, I want to get her by the hand and walk her up to the, show the people of Angelus Temple and all the others. मैं चाहता हूं कि मैं उसका हाथ थाम कर चलूं और सभी लोगों को दिखाऊं, यहाँ के सभी लोग, एंजलिस टेम्पल के सभी लोग और दूसरे लोग उस दृश्य को देख सकें। It'll be a great time then. तब वो दिन मेरे लिए कितना शानदार होगा। I pray that your mercies rest upon each of us here, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरी करुणा यहाँ हम सभी पर बनी रहे and those who are here, Lord, may not even know yet. और उन पर भी हो प्रभु जो तुझे अभी जानते तक नहीं है, Maybe they've got some little loved one across the sea yonder. और उनके अगर कोई छोटे छोटे अजीज प्रिय उस पार पहुँच चुके हों, If they've never fulfilled their promise, may they do it now, Lord. और अगर लोगों ने उनसे किए वायदे अभी तक पूरे न किए हों तो प्रभु होने दे अब वे उन्हें पूरा कर सकें। While we have our heads bowed, अब जबकि हमारे सिर प्रार्थना में झुके हैं, I wonder in this great, huge auditorium this afternoon, मैं जानना चाहूंगा कि आज दोपहर इस बड़े सभागार में how many of you say, Brother Branham, I want to meet my loved ones too. कितने लोग मुझसे कहेंगे कि भाई ब्रह्म, हम भी अपने उन प्रियजनों से मिलना चाहते हैं। I've got some loved ones just across the river yonder. मेरे भी कुछ प्रिय अजीज उस पार मौजूद हैं। Maybe you made a promise that you'd meet them. हो सकता है आपने उनसे मिलने का वादा किया हो। Maybe when you told Mother goodbye up there at the grave that day. हो सकता है उस दिन माँ को उसकी कब्र पर अलविदा कहते समय आपने उससे मिलने का वादा किया हो। Maybe when you told little sister goodbye or dad or some of them at the grave. हो सकता है आप में से कुछ ने अपने पापा, छोटी बहन या कुछ और प्रिय जनों को उनकी कब्र पर खड़े होकर अलविदाई दी हो। Promise you'd meet them and you've never made that preparation yet. कहा हो, वादा किया हो कि आप उनसे उस पार मिलेंगे, मगर अभी तक उसके लिए आपने कोई तैयारी नहीं करी हो। Don't you think it's a good time now to do it? क्या आप ऐसा नहीं समझते कि तैयारी करने के लिए अभी उत्तम समय है? Excuse my breaking down, मेरे इस तरह रोने के लिए मुझे माफ करें, but oh my, you don't realize, friend, लेकिन ओह हे प्रभु, मित्रों, आप इस बात को महसूस नहीं करते। you don't know what sacrifice. आप नहीं जानते कि कैसी कुर्बानी दी गई है। That's not a spot hardly of the life story. लेकिन मेरी जीवन कथा का ये अंश कदाचित महत्वपूर्ण नहीं है। How many of you would like to raise up now and walk up here for prayer? अब आप में से कितने लोग चाहेंगे कि उनके लिए प्रार्थना करी जाए, वे उठें और चल कर यहाँ आए। Say, I want to meet my loved ones. कहिए, मैं अपने प्रियजनों से मिलना चाहता हूँ। Raise up out of the audience and come down here. Will you do it? सभा में से आप लोग उठें और यहाँ आए। क्या आप ऐसा करेंगे? If somebody has never made that preparation yet, क्या वे सभी लोग आएंगे जिन्होंने अभी तक कोई तैयारी नहीं करी है? God bless you, sir. परमेश्वर आपको आशीष दे श्रीमान। I see an age-colored man coming out. Others coming. मैं देख रहा हूँ कि एक वृद्ध अश्वेत सज्जन और दूसरे लोग आ रहे हैं। Move yourself. You in the balconies up there. Just move right out into the aisle. आप जो ऊपर बालकनी में बैठे हैं, उठकर सीधे गलियारे में आते जाएं। Or stand up. You who wants to be remembered in a word of prayer just now. या केवल वहीं खड़े होते जाएं जो ये चाहते हैं कि प्रार्थना में उन्हें अभी याद किया जाए।
That's it. Stand right up to your feet. That's good. खड़े होते जाइए, ये अच्छी बात है। Stand up everywhere. You would say, I've got a father over yonder. I've got a mother or a loved one over yonder. आप में से जो कोई भी ये कहता है कि मेरी माँ या पिता या कोई और आत्मजन ऊपर मेरी प्रतीक्षा में है, वो यहाँ जहाँ भी बैठा है कृपया खड़ा हो जाए। I want to go see them. जो भी चाहता है कि उनसे मिले, उन्हें देखे, I want to meet them in peace. जो कहता है कि मैं उन्हें शांति में देखना चाहता हूँ। Will you raise up, you stand up to your feet anywhere in the audience? वे सभी लोग चाहे इस सभा में कहीं भी बैठे हैं कृपया खड़े हो जाएं। Stand up to your feet. Say, I want to accept. अपने पांव पर खड़े होकर कहें, मैं यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहता हूँ। God bless you, lady. God bless you back there and bless you up there. महिला, परमेश्वर आपको आशीष दे, उधर पीछे आपको भी आशीष दे, इधर ऊपर आपको भी आशीष मिले। Lord bless you here, sir. That's right. प्रभु इधर यहाँ आपको भी आशीष दे। Up in the balcony, the Lord bless you. ऊपर बालकनी में प्रभु आपको आशीष दे। All around, everywhere. Stand up to your feet now. I have a word of prayer. अब सभी ओर आप सब खड़े हो जाइए, हम प्रार्थना करेंगे। While the Holy Spirit is here and moving upon our hearts to break up. हम प्रार्थना करेंगे जबकि इस समय पवित्र आत्मा यहाँ हमारे हृदयों में जुम्बिश कर रहा है और सख्त हृदयों को तोड़ रहा है। You know what the church needs today is a breaking up. आप जानते हैं कि गिरजों को आज जिस बात की जरूरत है वो है स्वयं को नम्र करना, तोड़ना। We need to go down to the potter's house. हमें आज जरूरत है कि हम फिर से कुम्हार के पास जाएं। Our stiff homemade theology sometimes doesn't work so good. हमारी अपनी बनाई सख्त धार्मिक बातें कभी कभी कुछ काम नहीं आती। What we need is an old-fashioned breaking up. Repentance in our hearts getting mellow towards God. हमें जिस बात की जरूरत है वो ये है कि हम पुराने समय की पुरानी टूटन हृदयों में भरें और पश्चाताप करें और परमेश्वर के साथ संबंधों को अधिक मधुर बनाएं। That all now that's ready to stand. क्या प्रार्थना करने के लिए इच्छुक सभी लोग अब यहाँ खड़े हैं? Let us bow our heads then for prayer. तब आइए हम अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएं। O Lord, who brought again Jesus from the dead to justify all of us by faith believing. जो यीशु को मुर्दों में से जिला लाया ताकि उस पर विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहर सकें। I pray, Lord, that these who are standing now to their feet to accept Thee, I pray that forgiveness will be to them. ये सब लोग जो तुझे ग्रहण करने के लिए यहाँ खड़े हैं, मैं प्रभु तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि इनके पापों को क्षमा किया जाए। Oh Lord, I pray that they will accept You as their Savior and King and Lover. और हे प्रभु होने वे ये तुझे अपना प्रिय राजा मुक्तिदाता जानकर ग्रहण कर सकें, ये मेरी प्रार्थना है। Then maybe they got a mama, a papa, somebody just across the sea. और हो सकता है कि उस पार इनमें से किसी के पापा, मामा या कोई और प्रियजन चले गए हों। There's one thing sure, they got a Savior. एक बात तो सुनिश्चित है कि इन लोगों को अब एक उद्धार करने वाला मिल गया है। May they be forgiven of their sins. होने दे कि इनके पाप क्षमा किए जाएं And all their iniquity blotted out. और इनकी सभी अधार्मिकताएं धो दी जाएं। That their souls may be washed in the blood of the Lamb. इनकी रूहों को मेमने के लहू से धोकर साफ किया जाए And they live in peace from hereafter. और आज से ये लोग तेरी शांति में बने रह सकें। And some glorious day when it's all over, may we gather at Your house. और किसी महान शानदार दिन जबकि ये सब समाप्त हो जाए तो हम सभी तेरे भवन में एकत्रित होने पाएं And be there as unbroken families to meet our loved ones that's waiting on the other side. और वहाँ एक बड़े परिवार के रूप में जो कभी टूटेगा नहीं, फिर से अपने उन प्रियजनों से मिल सकें जो उस पार हमारा इंतजार कर रहे हैं। This we commit them unto Thee, हम इन लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं that Thou wilt keep him in perfect peace whose heart is stayed upon Him. ताकि तू उन लोगों को अपनी सिद्ध शांति में बनाए रखे जिनके हृदय तेरी ओर लगे रहते हैं। Grant it, Lord, प्रभु इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए as we commit them to Thee.
In the name of thy Son, the Lord Jesus. Amen. इनको हम तेरे हाथों में सौंपते हैं और इस विनती को तेरे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।